Good morning, guys. Good morning, sir. I hope I'm audible, visible. Tell me. Yes. Sure. आ जाओ. Tahir, good morning. Sure. So I think yes. Good morning, Good sir. morning. Sure. I think yesterday we did this. Sir, I've tried the patient's question yesterday and I've sent you the Excel sheet. So Oh, if you can go through it once and let me know. Also, sir, you can solve that question in class, today's class. I have answer of that. Suggested answer of that. I'll give you that. No worries. Okay, sir. What question to take today is the question. This one is comparatively easier. Kagan question is something that I think is important and a good question. So you can check that question right now, which I've sent you, because I want you can check that question right now, which I've sent you, because I wanted to know that the language and everything is appropriate or I need to make some changes. लैंग्वेज का क्या लेना देना है? You just have to say allowable, How disallowable. will this format the flow of the question? हाँ ठीक है. Wait. Yesterday, which question we did, right? Richard Tiles. Richards. Just a second, alright. I don't know whether you have seen this question, but read this question. Give me a minute just.
चलो आ जाओ quickly. You should assume that today is 4th April 23. On 2nd April 23, what happened? अरे क्या हो गया भाई? हाँ. On 2nd April 23, Kagan what inherited some quoted shares valued at 510,000 following the death of his aunt. Right? Kagan is unsure whether to retain the shares or sell some of them in order to make some alternative investments. Right? Kagan is aged 61 and is an additional rate taxpayer. Correct? Then, prior to the inheritance, his taxable income consisting entirely of employment income for 23-24 would have been 400,000. That means his employment income will be 400,000. उसके ऊपर ये 510,000, right? He has received some unquoted shares, correct? Oh, sorry, quoted shares, right, from his aunt. The income tax liability on the income for the tax year 23-24 would have been 166,203. Verify whether 400,000 is employment income, correct? That means full NSI, right? Is the tax liability correct or not correct? Tell me. 400,000 per tax liability. How will you calculate? First 37,700 at what rate? 20%. 37,701 से आगे, right? करो करो. How much is the tax liability? First 37,700, 20%. 37,701 to 125, 140, 40%. Higher than 125, 140 at 45%. So it's correct. 166,203. Tell Yes. me. Nishan, are you getting it? Yes, I'm just doing the last one. Okay. Add all of them. Got it, Nishan? No, so I'm getting a different answer. What are you getting? चलो देखो आ जाओ. How will this happen? 37 to 20%. देखो 400,000. So have a look. First 37,700 at what rate? 20%. Correct. 20%. Yes. Then 125, 140 minus 140 37,700. Correct. At 40%. Right. 87. And you have 400,000 minus 125, 140. Correct. At 45%. Correct. Oh, okay. So you will be I this was in doing 165. That's why. correct. Sum of all of this 166,203. Got it. I was taking Excel tax में, at 166, so that's so why. Excel में you can do it easily. Correct. Make sense? Tell me. Yeah. Then go ahead. If Kagan simply retains the inherited shares, what will happen? Have a look. Prior to receiving inheritance, Kagan's chargeable estate for inheritance tax purpose was valued at 1.7 million. IST of 550 would be payable were he to die in the near future. ठीक है.
does not have a lot of implication, but still, ठीक है. Retain what? The inherited shares. If Kagan simply retains the inherited shares, he will receive what? 15,300 dividend, correct? During the tax year 23-24. In addition to his employment income of 400,000. Now see, logically, if he retains the shares, then 15,300 dividend he will receive. So his income will become how much? 400,000 plus Plus 15,300, correct? 15,300. उसमें से फर्स्ट 1,000 टैक्सेबल एट व्हाट रेट? टेल मी. ये 15,300 में से 0. 0 एंड 0%. रिमेनिंग 14,300 टैक्स एट व्हाट रेट? 400 के ऊपर है. फर्स्ट इज 45%. 8.75. देन व्हाट इज द सेकंड रेट? टेल मी. 40. 33.75. 33. Yes, yes. 33.75 and third rate would be what? Tell me. 39.35. 39.35, correct? So remaining 14,300 यानी ये 166,203 निकाला. If I say 15,000, correct? तो उसमें 1,000 at 0%, correct? And remaining 14,300 at what rate? Tell me. 39.35. 39.35%. बराबर है. Correct. So how much would be your tax be? Tell me. Adding both of them, 171,830.1. Correct. This would have been the tax if he had what? Inherited and held the share, not sold the share. ठीक है. चले. But sell some inherited shares and make some 4 alternative what? To fund the following 4 alternative investment options, right? Kagan will make a gross personal pension contribution of 100,000. Kagan is a member of what? Of a pension scheme, but has not made any contribution in recent years. अभी इसमें what? 100,000 का अगर वो gross personal pension contribution करेगा, right? Kagan is a member of a pension scheme. Now I don't know, we have not yet revised the pension का chapter, correct? But tell me, what is the AEA for pension? Tell me. 40,000 का AEA, right? And you can use last 2 years का AEA, right? So can be carried forward to current year. So have a look. But Kagan is a member of a pension scheme but has not made any contribution in recent years. बराबर है क्या? देखो जरा. Not made any contributions in the recent years because his income has been substantially lower than it is for tax year 23-24. Therefore has sufficient unused annual allowance to cover the pension. यानी याद हो तो there is a tax charge on the pension, correct? That will not arise because he has unused what? Tell me. Balance that can cover the 100,000. Kagan will immediately withdraw 25,000 of the pension fund tax free. I don't know whether you know, but pension में एक है कि 25% of your what? Pension fund you can quickly remove as what? Lump sum tax free amount. तो इस पे भी tax नहीं लगेगा, right? So 25% tax free lump sum. However, no pension will be taken during the tax year 23-24. Correct? No pension, right? But GPPC अगर आएगा, correct? If it is gross personal pension contribution of 100,000, will it be deducted from his main income, or will there be extension of bands due to the GPPC that we do? Tell me. Extension of that. Extension of bands. क्या बोलता है तायर? Yes or no? Yes, sir. Kagan will invest what? 500,000 in premium bonds. The expected amount of premium bond price which will be received during the will invest 50,000 in premium bonds, correct? And the expected amount. So have a look. 100,000 year, right? 50,000 year, correct? So expected amount of premium bond prices which will be received during the tax year. Now tell me, premium bond prices or winnings, are they taxable or are they exempt? Tell me. Exempt. Exempt, correct? So 550,000 पे investment करेगा, that has no implication, but the 700 that you receive is exempt, so no need to do anything, correct? इस पे कुछ ऐसा है कि extension of bands, deduction वगैरह ऐसा कुछ when you do investment in premium bonds? No. No. It is a normal investment that you're doing. Kagan will invest the maximum permitted amount of 20,000 in a cash ISA, right? The ISA will pay an interest of 400. Tell me, ISA में जब पैसा देते हो कोई डिडक्शन है? नहीं है. But No. the amount you receive from the ISA interest amount, will it be taxable or not be taxable? Tell me. Not taxable. Exempt है क्या पूरा का पूरा ISA? Exempt.
Kagan will purchase a freehold property for 295,000. Correct. The property will be let out unfurnished. So have a look. एक minute. Either or 20,000 and last 295,000. देखो जरा कितना अमाउंट रिमेनिंग है. Tell me how much amount is remaining. See, he had shares of how much? देखो जरा. He had shares of how much? 510,000. 510,000. तो 100,000 इधर ज्यादा आता है क्या? देखो जरा. 100 plus 50 plus 20 plus 295. How much is it? No, so 90,000 is extra surplus remains. Remains. 465 510 में से कुछ रिमेनिंग हो जाएगा. करेक्ट. Yes. ठीक है. केगन विल परचेज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 295,000. The property will be let out furnished with Kagan receiving property income of 9,600. Will this 9,600 be taxable or not be taxable? Tell me. Taxable ना? Taxable. Taxable. ठीक है. उसके बाद after making this four investment, Kagan will be left with 65,000 of the inherited shares. 65 कैसे बोल रहा है भाई? देखो 510 में sir. से कितना गया? 150, 170 plus 295 कितना जाएगा? 45 will remain, sir. 45 will be balance. क्या क्या क्या? 45,000 45 will the remain. balance. ऐसा कैसे होगा? 510 के शेयर है ना? Yes. 510 minus ये 50 बोला है. minus 20 minus रिमेनिंग 20. 65 क्यों रहेगा? टेल मी. आप 100,000 पे करोगे जीपीपीसी में या 80,000 पे करोगे? हाउ मच विल यू कंट्रीब्यूट? 100,000 और 80,000? टेल मी. 100. 100,000 is gross. How much will you contribute from your pocket? Tell me. Okay. Yes. 100,000 is gross. How much is paid, made, done? Tell me. 80% होगा. 80%. यानी you will only contribute how much? 80,000 80,000. इधर. बराबर है क्या? Yes. But sir, here they say ना we will make a gross personal pension contribution तो डायरेक्ट ही वो करेगा ना ग्रॉस के, ऐसा नहीं होता. अरे राजू, you pay how much? HMRC pays how much? Gross में. 100%. HMRC pays 100% ना. तूने 800 रुपया दिया हाँ, तो HMRC कितना रुपया देगा? उसमें ऐड ऑन करके 20. हाँ 20. 800 में 20 देगा या 200 देगा? हाँ 200. 1,000 का कंट्रीब्यूशन है तो अब तू कितना देगा और HMRC कितना देगा? 800. I will be giving 800 and HMRC will be giving 200. तो 100,000 में you will pay how much? 80,000. How much will HMRC pay? 20. How much will go from your pocket? 80, 20 और 100,000? 80. 80. बराबर है. समझ में आया? Sir, so हाँ. gross mention किया तो we should be grossing up. ग्रॉस मेंशन कर दिया है. करेक्ट. हाँ. But here the question is to find out net. Understood? Because how much you have contributed? Net you have contributed 80,000. Correct? From your pocket how much money left? 80,000. बराबर है क्या? Tell me. तो रिमेनिंग 65,000 का क्या बोला है? जो उसको मिलेगा उस पे उसको डिविडेंड इनकम 950 पाउंड्स का मिलेगा. ठीक है ना? 510 में से 65,000 पे 950 का डिविडेंड मिलेगा. He will also have the employment income of 400,000. Kagan will not make any other disposal during the tax year 23-24. Calculate Kagan's revised income tax liability for the tax year 23-24 if he retains the inherited share. Right? Explain why little or no capital gain will be payable if Kagan sells some of the inherited shares. Right? Inherited shares if he is going to sell, why there is going to be no capital gain tax? I'll keep that pending. ठीक है? एक मिनट. Revised income tax liability if inheritance if he retains. Okay. वो तो निकाल दिया क्या पहला 1 मार्क का? If he retains the share तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 171,830. वो निकाला क्या अपन ने? टेल मी. If he Yes. retains the share तो डिविडेंड कितना मिलेगा? बताओ मेरे को. डिविडेंड. सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क? Dividend income of 950 ना.
पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट केगन्स रिवाइज्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24 इफ ही रिटेन्स द इनहेरिटेड शेयर्स। ऊपर आ जाओ। इफ ही रिटेन्स द इनहेरिटेड शेयर्स, देखो जरा in 300. पढ़ो। रिटेन्स द इनहेरिटेड शेयर्स तो क्या होगा, पूरा 15,300 मिलेगा डिविडेंड, बराबर है। वो Yes. 400,000 के ऊपर ऐड होगा, बराबर है। उसकी टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी निकाली है क्या अपन ने? Yes, yes. Yes. तो हेडिंग यहाँ से उठा लो क्वेश्चन में से, कैलकुलेशन ऑफ केगन रिवाइज्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ केगन्स करके रखा है हमने, राइट। उसको प्रॉपरली क्या कर देते, रिवाइज्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 23-24 if he retains the inherited shares। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो हमने क्रॉस चेक करने के लिए किया था क्या, टेल मी। ये Yes, sir. कैलकुलेशन करेक्ट, क्रॉस चेक ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। ठीक है। तो क्या होगा, एनएसआई में एम्प्लॉयमेंट इनकम है आपके पास, करेक्ट। इज दिस रिक्वायर्ड टू बी डन इन एग्जाम? नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस चेक। अभी उन्होंने दिया एग्जाम में तो इट विल बी करेक्ट ओनली। राइट। इसके ऊपर डिविडेंड इनकम, ये है डिविडेंड इनकम नील रेट बैंड, फर्स्ट 1,000, राइट। देन रिमेनिंग डिविडेंड इनकम, राइट। ठीक है। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स विथ डिविडेंड, राइट। तो ये पहला 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया क्या, टेल मी। नाउ व्हाट इज B2? कैलकुलेट what Kagan's revised income tax liability, right, for the 4 alternative investments, बराबर है क्या। और फॉर क्या बोला एंड में, state whether the investment will reduce Kagan's potential IHT liability compared to him retaining the inherited shares। ये कितने मार्क का है, 2 मार्क का है क्या एंड में, हैव अ लुक। चलो, अभी वी हैव नॉट डन IHT, करेक्ट। ये CGT, करेक्ट, CGT और IHT, बट लेट्स डिस्कस CGT एंड IHT, दैट इज देयर, करेक्ट। नाउ सी इनहेरिटेड शेयर्स, थोड़ा याद करो। इफ यू रिसीव सम इनहेरिटेड शेयर्स फ्रॉम समवन, करेक्ट। Yes. आज मैंने रिसीव किया फॉर 510,000, करेक्ट। इफ आई सेल इट, आज के आज ही सेल कर दिया, करेक्ट। सो टेल मी, what will be the cost of acquisition for me whenever you have an inherited property? What will be the cost of acquisition of the inherited property? सोचो जरा, what is the cost of acquisition for an inherited property for the person who receives? IST भूल जाओ, CGT में जा रहा हूं मैं। Let's say you as an individual received an inherited property from someone who has passed away, बराबर। What will be the cost of acquisition? Will it be that person bought it 20 years ago, वो cost of acquisition, or market value of the property as on date of that person? Tell me. Market value. Market value as Market in date value, of death. करेक्ट।
तो अगर मेरे को जब रिसीव हुआ और मैंने 510,000 में ही सेल कर दिया, करेक्ट, बिकॉज व्हाट वाज इट टोल्ड, हैव अ लुक, देखो जरा कितने में रिसीव हुए थे शेयर्स, अनकोटेड वैल्यूड एट 510,000 फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज aunt, राइट। तो उसने 510,000 में ही अगर सेल कर दिए, करेक्ट, तो कोई सीजी आएगा या नहीं आएगा, टेल मी। नो Cost सीजी to मिला था। acquisition 510,000, selling price also or sale proceeds also 510,000. So will there be any CG? Tell me. नो सीजी। No, sir. No. Apparently no CG. Correct. Then आ जाओ जरा. So for that can we write here revised income tax liability? ये वाला explain why little or no capital gain tax, right? So I will say this is a question. ये हो गया. We will say B1, right? As the cost of acquisition for inherited property is the value as on what date of death of the predecessor, right? The value is 510,000, right? We have been told that the sale of shares will also happen at the same amount. ठीक है, we are selling, कितने के शेयर सेल कर रहे हैं आप, टेल मी, out of the 510,000 you have 65,000 remaining, so how much you are selling, tell me, tell me 65,000 तुम्हारे हाथ में, how many remaining, tell me, how many you sold, 445,000. 445,000 pounds, right, on the same value as the inherited amount, hence no chargeable gains, will arise on the same. ठीक, अब आ जाओ B2 में, राइट, एक मिनट, कल जैसा करते वेट, सर तो जो 445 का इन्वेस्टमेंट किया, जो शेयर सेल की, उस पे सीजीटी अराइज नहीं होगा ना? इन्वेस्टमेंट पे सीजीटी अराइज होता है या सेल पे सीजीटी अराइज होता है, टेल मी। सेल पे होता है। बराबर है। तो सर फिर जो रिमेनिंग 65 है उसका क्या? रिमेनिंग 65 उस पे सीजीटी अराइज होगा क्या, अब भी इस साल में कुछ होगा क्या उस पे, टेल मी। नहीं, क्योंकि उसने रिटेन करके रखे हैं ना। तो कुछ नहीं होगा, अच्छा, ओके, गॉट उसके इट, ऊपर गॉट इट। डिविडेंड इनकम आएगी, वो देख लेंगे, ठीक है। अगर वो रिमेनिंग 65 से सेल होते वो शेयर्स, तो ही सीजीटी अराइज होता ना। हाँ, बट सीजीटी भी कब अराइज होता है, 65 से 75 में होते तो, हाँ, ओके। इफ इट हैड बीन एट अ हायर अमाउंट तो ही होता, करेक्ट। नाउ व्हाट, कैलकुलेट केगन्स रिवाइज्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी, राइट, कैलकुलेशन केगन्स revised income tax liability, correct, for tax year 23-24, right? If he sells the investment and makes, for alternative, sells the shares and makes 4 investments, ठीक है, चले, tell me. Now here you have two options, either you can do NSI SI DI, correct, क्योंकि एक DI received है, या you could follow one columnar approach only, ठीक है, both options are open to you, right? The examiner should not have problem with both the things, right? अभी कल हमने columnar approach use किया है, तो आज what I'll do, single column only I'll use, ठीक है, have a look, I'll say what, particulars, amount in pounds, correct,
तो हैव अ लुक, सबसे पहले सैलरी इनकम, या ऐसा लिखता हूँ देखो, NSI डैश सैलरी इनकम, ठीक है क्या? 400,000, ये तो अपने पास ऑलरेडी है, करेक्ट? ओवर एंड अबाउ दिस 400,000, राइट, विल गो वन बाय वन डूइंग व्हाट, ये चारों चीजों को एनालाइज। आ जाओ। नाउ फर्स्ट थिंग, gross personal pension contribution. Now logically pension income should have come because 25% has been what, taken out. तो आपने पेंशन इनकम लिखने का और नीचे लिखने का 25% लमसम रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट, राइट? 25% लमसम कितना रिसीव हुआ है? 25% लमसम, दैट इज 25,000, राइट? 25,000. रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट, तो मैं 0 लिखूंगा इधर, करेक्ट? टोटल NSI कितना है? 400,000। उसके बाद चलो केगन विल इन्वेस्ट 100,000 का इन्वेस्टमेंट का, विल गिव द 3 इम्प्लीकेशन, ठीक है? उसके बाद केगन विल इन्वेस्ट प्रीमियम बॉन्ड में 50,000, करेक्ट? तो मैं लिखूंगा प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स, राइट? एंड व्हाट Exempt. शुड आई राइट की प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स किधर टैक्सेबल है? टेल मी। सेविंग्स Exempt. इनकम, सेविंग्स इनकम Exempt. लिखूंगा, प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स, बट आई विल राइट व्हाट, प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स आर exempt from income tax or from taxes। तो क्या लिखूंगा? 0, बराबर है। फिर केगन Exempt. विल द मैक्सिमम परमिटेड कैश आय से सेविंग्स इनकम, लेकिन सेविंग्स इनकम है ना, रुको, विल फॉलो कॉलमनर अप्रोच बेटर, NSI SI DI Total. and total। now you have to do this once only in exam, so what you will do, बराबर है? ठीक है, इधर सैलरी इन, करेक्ट, पेंशन इनकम ये है, उसके बाद प्रीमियम बॉन्ड विनिंग्स वहां जाने देते हैं, ठीक है क्या? चलो, ओके। उसके बाद केगन विल इन्वेस्ट कैश आय से, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश आय से, राइट, इज ऑल्सो 0। एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड और CG received from cash ISA holdings, right, are always exempt, ठीक है? ये हो गया कैश ISA। उसके बाद क्या है? प्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये तो क्या है? टेल मी, ये 9,600 इज इट NSI SI और DI? टेल मी, NSI SI और DI? NSI. NSI। तो NSI में एक ऐड कर देता हूँ, प्रॉपर्टी इनकम, करेक्ट? गिवन है क्वेश्चन में, हाउ मच इज द प्रॉपर्टी इनकम? 9,600, 600. ठीक है? अब ये सब होने के बाद रिमेनिंग 65,000 पे क्या आ रहा है? टेल मी, Dividend. रिमेनिंग 65,000 पे टेल मी, डिविडेंड इनकम, ठीक है? 950. तो डिविडेंड इनकम, सर उसके पहले स्टार्टिंग में भी एक था ना वो डिविडेंड इनकम, उसका क्या होगा? पढ़ता है हाँ क्या वो क्वेश्चन? देख जरा, वो जिसमें से 15,000 वाला वो। देखना। वो दोनों ऐड करो, मतलब 510 है, वो सेल कर दिया तो भी 15,300 मिलेगा, टेल मी। नहीं मिलेगा। पढ़ने का क्वेश्चन, कि रिटेन किया इनहेरिटेड शेयर्स और बेच दिया, दो अलग अलग ऑप्शन है ना राजू, और उसका तो ऑलरेडी आप 15,000 कंसिडर करके ऊपर कर चुके हो क्या? वो हाँ क्या हाँ बोल हाँ। रहा है, अगर आपने 510,000 रखे तो 15,300 मिलेगा,
बराबर है। हम्म, और अगर और आपने नहीं रखे, करेक्ट, तो ये चीजें होगी। अब नहीं रखने के बाद 510 में से भी कितना, 400 एंड कितना, 65, आपने 465 है ना, या 475, 445। 450, 45, करेक्ट, जो भी होगा, Yes, 455 आपने क्या कर दिया, टेल मी, सेल कर दिया। invest. तो 445 या 55 वट एवर उसका ये हो गया, और बचा हुआ, राइट, ये किसके लिए है, रिमेनिंग 65,000 ऑफ इनहेरिटेड शेयर्स, उस पे कितना रिसीव हुआ, टेल मी, 950 विल बी, 950. ठीक है। अब लॉजिकली क्या आएगा, टोटल इनकम, करेक्ट, टोटल इनकम कितनी है, टेल मी, ये रही टोटल इनकम, राइट। देन कोई क्यूआईपी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यही नेट इनकम हो जाएगी, राइट। ओके, क्या देखो, नेट इनकम हो जाएगी, राइट। देन पीए माइनस होगा क्या रे, No, no No, P sir. available. क्या लिखोगे आप, टेल मी, ए एन आई इज इक्वल टू हाउ मच, More than 125. 125, 140. मोर देन 125, यानी है कितना ए एन आई अभी के लिए, टेल मी, तुम्हारा नेट इनकम कितना है, 410,550, करेक्ट, उतना ही ए एन आई है या ए एन आई है, Sir, नहीं GPC. उसका पेंशन क्या, कंट्रीब्यूशन है ना। पेंशन Pension. कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस Contribution. होगा 100,000 का, टेल मी, यस। तो कितना बचेगा, 310,550, राइट। तो नो पी ए अवेलेबल, इधर भी आपको एक ही बार लिखना है, तो पर्सनल अलाउंस लिख दो, राइट। तो 0, 0, 0, 0, बराबर है। इसी से आपको टैक्सेबल इनकम आएगी, करेक्ट। अब इसके ऊपर टैक्स, ठीक है, कैसा करोगे, एनएसआई, राइट, फर्स्ट 37,700, 20%, करेक्ट। देन एनएसआई कितना होगा, 125, 140 माइनस 37,700, 40%, करेक्ट। देन एनएसआई कितना होगा, देखो, हाँ, 409600 माइनस 125, 140, बराबर है, करे, टेल मी, यस सर। दिस एट 45%, करेक्ट। एंड देन उसके बाद डीआई विल बी टैक्स्ड, करेक्ट, पूरा 950 एट व्हाट रेट, टेल मी, जीरो। 950 0%. 0, करेक्ट, राइट। तो दिस इनटू दिस, देखो कितना आता है, हैव अ लुक, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है क्या, ओके, कोई प्रॉब्लम, यस। नो सर। No, sir. 6 मार्कर क्वेश्चन डन, थोड़ा सा डिफरेंट, टेल मी, for each of the four alternative investment, pension contribution, premium bonds, ISA and freehold property, state whether the investment will reduce Kagan's potential IST liability compared to him retain the inherited shares. अब मेरे को बोलो, सुनो, पेंशन का जो अमाउंट है, पेंशन कंट्रीब्यूशन, राइट, विल इट बी टैक्स्ड व्हेन ही डाइज इन आईएसटी, ऐसा पूछ रहे हो। सर रिपीट करो। देखो, आपने अगर शेयर्स रखे होते हैं 510,000 के, एंड इफ यू आर डाइड, करेक्ट, तो क्या उसके ऊपर आईएसटी लगता है, नहीं लगता, अगर आप जब भी वो किसी को देते तो, टेल मी, Yes. यस। Yes. इट बी चार्जेबल टू आईएसटी, यस। AHT. बट पेंशन कंट्रीब्यूशन, करेक्ट, पेंशन जो आपकी रिमेनिंग है, क्या पेंशन मिलती है आपको डेथ के बाद, टेल मी, आपके बच्चों No. को, नहीं, नहीं मिलती, बट उस नहीं पर मिलेगा। आईएसटी अराइज होगा क्या, विल आईएसटी अराइज ऑन पेंशन, नो,
प्रीमियम Yeah. बॉन्ड्स पे होगा क्या? द बॉन्ड्स विल बी ट्रांसफर टू योर सन, वुड दैट बी एन एसेट? यस. इंडिविजुअल Yes. सेविंग्स अकाउंट में कुछ अमाउंट होगी तो विल इट बी ट्रांसफर टू योर son or daughter? Yes. Will ISA or will what? It will be charged. Freehold property also when transferred on death, will it be what? Tell me. Transferred, yes. तो इसका मैं आंसर आपको है, थियोरी आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नो कंप्यूटेशन आर रिक्वायर्ड. थियोरी आंसर आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सॉरी. ओके, एक और क्वेश्चन करना है मेरे को. एक वो यार IHT वाला, IHT नहीं, रुको. I'll tell you. सर तो पेंशन कंट्रीब्यूशन का होगा ना आईएचटी के लिए एप्लीकेबल? नहीं, कैसे होगा? टेल मी. वो नहीं होगा ना? नहीं होगा. पेंशन छोड़ के बाकी तीन पे आई थिंक आना चाहिए. राइट. अब यार कुछ रीसेंट क्वेश्चन अपन ले सकते हैं क्या? कैट वाला क्वेश्चन ठीक है, अलिशिया भी ठीक है. एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, गायब हो गया क्या वो क्वेश्चन? सर कल के होमवर्क क्वेश्चन में ना एक पॉइंट था, तो उसमें था कि वो जो पेशेंट है ना पर्सन, उसका नाम है, तो उसकी ग्रैंड डॉटर को चाइल्ड बेनिफिट मिला है, तो सर उसके लिए तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा ना? ग्रैंड डॉटर पे जनरली नहीं होना चाहिए. बस एक यही पॉइंट था उसमें अलग से, हम्म. और एक सीजीटी का था, तो सीजीटी का तो सर सॉल्व नहीं किया उसमें. इंटरनेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट एज डिविडेंड्स, ये भी कर सकते हैं आज. आप कजूओ बोल के क्वेश्चन है ना, कजूओ. रुको, आपके इवन स्टडी हब से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं. वेट. प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से एक क्वेश्चन करते, रुको. जो रिसेंट कोई एग्जाम का क्वेश्चन होगा ना, दोनों खोल के रखते हैं, स्टडी हब और प्रैक्टिस हब दोनों. और सर कल के क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि शी रिसीव्ड गिफ्ट वर्थ 600 पाउंड्स, सो इट विल बी एंटायरली टैक्सेबल ना? गिफ्ट ऑफ व्हाट? वो शी रिसीव्ड अ गिफ्ट वर्थ 600 पाउंड्स, सो इट बट विल बी कहाँ से? एम्प्लॉयर से, बेटे से, बच्चे से? एम्प्लॉयर से Employers. हाँ, फुल्ली टैक्सेबल. यूके टैक्स 2022 दिसंबर, एक मिनट. हाँ, हाँ 24 वाला कर लेते हैं, 23 वाला देख लेते हैं. आ जाओ जरा. प्रैक्टिस सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये कौन सा है? गिफ्ट टू ट्रस्ट वगैरह, मार्केट वैल्यू, कैश, जेसिकाज इनकम.
आ गया एक ल्यूक वाला क्वेश्चन है, ल्यूक लिमिटेड शेल्डन, प्रॉपर्टी इनकम और ठीक है टैक्स पेएबल बाय शेल्डन, ठीक है आ जाओ। रिसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, देख लो जरा। इज द क्वेश्चन विजिबल टू यू? टेल मी। देखो जरा, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? Yes, हाँ sir. सर। चलो, शेल्डन इज एम्प्लॉयड बाय व्हाट ल्यूक लिमिटेड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ल्यूक लिमिटेड पेड अ ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ 133,000 पाउंड्स टू शेल्डन, बराबर है। चलो अभी ये तुम लोग एक्सेल पे सॉल्व करो, चलो चलो चलो, साइड बाय साइड। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, करो शेयर, चलो सॉल्व करना शुरू करो। पर्टिकुलर्स लिखो, क्या बोला? इनकम टैक्स पेएबल, हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल बाय शेल्डन फॉर द टैक्स ईयर 23-24। ये लो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? अब दिख रहा है? Yes, sir. हाँ यू आर गोइंग टू गिव मी ऑल द फाइनल आंसर, ठीक है? On 1st August 23, Luke Limited provided Sheldon with an interest-free loan of 80,000 pounds. Right? Now see what I'll do. I'll do in my Excel, but I will not show you that Excel. ठीक है? आप भी क्या करो? Tell me. सर बट उसको क्वेश्चन को साइड बाय साइड कैसे ओपन करूँ? क्या? वो क्वेश्चन को सर साइड बाय साइड कैसे ओपन करूँ? अब जूम को छोटा कर दो। चलेगा? आ जाओ। So Luke Limited paid Sheldon a gross salary of 133,000, ठीक है? या मैं इधर से उसका ये ले लूँ क्या, कॉपी पेस्ट करके वर्ड में ले लूँ क्या, या दिख रहा है आपको क्वेश्चन? टेल मी, इज इट विजिबल द क्वेश्चन? टेल मी। Yeah, sir, visible, sir. विजिबल सर। चलो, तो ल्यूक लिमिटेड पेड शेल्डन अ ग्रॉस सैलरी ऑफ 133,000, तो मेरे को अगर बोलना है कैलकुलेशन शेल्डन वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स लायबिलिटी। फॉर टैक्स ईयर 23-24, बराबर है क्या? आ जाओ चलो। तो सबसे पहले क्या आएगा? नाउ जरा देखो एक बार, एम्प्लॉयमेंट इनकम बोला है और इसके नीचे क्या बोला है? प्रॉपर्टी इनकम, राइट? तो क्या लगता है, शुड आई मेक एनएसआई एसआईडीआई, या सिर्फ एनएसआई में काम हो जाएगा एक कॉलम में? टेल मी, व्हाट शुड आई डू? थिंक एक कॉलम है हो जाए। एक कॉलम में काम हो जाएगा, ठीक है? तो अमाउंट इन पाउंड्स ले लेता हूँ, करेक्ट? अमाउंट इन पाउंड्स, आई हैव टेकन वन कॉलम ओनली, आई हैव टेकन टू कॉलम्स, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम, ठीक है? सो दैट प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, यू ऑल्सो कैन डू द सेम थिंग। जो जो फाइनल है वो बाहर ले लो, जो जो कुछ वर्किंग करना पड़ेगा वो इनर कॉलम में आप वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? आ जाओ, सैलरी रिसीव्ड, करेक्ट? सैलरी रिसीव्ड, कितनी है सैलरी रिसीव्ड? टेल मी। 133,000, 33 यहीं से शुरुआत होगी। नाउ लेट्स गो। On 1st August 2023, Luke Limited provided Sheldon with an interest-free loan of 80,000, not provided for a qualifying purpose. Sheldon repaid 8,000 on 31st January 2024.
taxable benefit in respect of the loan is calculated using average method. So how do we do this? Tell me. 80,000. So first, what I should say, this is a benefit or is this a taxable amount or is this It's a a benefit. deduction? Tell me. Benefit, Benefit. correct? Right. Benefit Yes. of loan given. So interest on beneficial loan, ऐसा लिखो, interest on beneficial loan. चलो, how will you calculate it? Tell me. Now see, you have two option. या तो इसका वर्किंग नोट बनाओ, नीचे बताओ, या उसी के नीचे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन बेनिफिशियल लोन गिवन, करेक्ट, और उसके नीचे क्या करो, शो द वर्किंग. हाउ विल यू शो द वर्किंग? टेल मी, व्हाट इज द वर्किंग लाइक? चलो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू नाउ. टेल मी. 1 अगस्त 23 को लोन लिया और द लोन वॉज आउटस्टैंडिंग टिल द एंड ऑफ द ईयर. कैसा करोगे कैलकुलेट? बोलो. 80,000 plus So 80,000 will be the वो starting benefit Opening. opening एक balance. सेकंड. Sorry, benefit not balance. Opening balance. 80,000 plus 72. 8,000. 72. जाओ देखो कैसा करेंगे. 80,000 plus 72,000 divided by 2. 80,000 plus what? Tell me. 72,000, the closing balance, By 2. divided by 2 into 2.25 percentage. Into what? Tell me. 2.25 percentage. Into 2.25%. Into what? Tell me. In बस हो गया ना? Yes. नहीं अगस्त करना है सर. अगस्त क्या करना है? March. 8 by 12. 8 by 12. Why 8 by 12? Is the loan outstanding for full year or is it outstanding for only n months? Tell me. Sir, but this is the average method ना? एवरेज मेथड में n by 12 नहीं होता है. जाओ देखो, नोट्स में जाओ, देखो लोन अगर आउटस्टैंडिंग खाली 8 महीने के लिए तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट लोगे. टेल मी. क्या बोलता है निशान? टेल मी. No sir. Right. यस. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? टेल मी. 8. Yeah, in that So way. into 8 by 12, how much will be the amount? बोलो. 1140. तो 80,000. तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे कर रहा हूँ मैं, आप भी ऐसे कर सकते हो. इनर कॉलम में सारा सैलरी का कैलकुलेशन ले रहा हूँ, ठीक है. तो कितना आता है बाबा? टेल मी. 1140. 40. 1140. ठीक है, सही है. चलो आगे बढ़ो. थ्रू आउट द टैक्स ईयर 23-24, राइट, Sheldon had the use of Luke Limited's company gym. The company gym is only open to employees of Luke Limited, and the annual cost per employee to the company of providing this benefit is 670. मेरे को बोलो, अगर benefit of gym provided to all employees और employer का ही gym है, will it be a taxable benefit or exempt benefit? No benefit will arise. Exempt. तो पर लिखना तो पड़ेगा. What you will write? Yeah. Tell me. Gym benefit. Gym benefit, right? फिर डैश लिखो, गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज और गिवन टू ओनली शेल्डन. टेल मी. Given to all employees. ऑल एम्प्लॉइज. हेंस क्या होगा? टेल मी. Exempt. हेंस एग्जेम्प्ट. बराबर है. तो क्या करूँ, जीरो लिखूं या कोई अमाउंट लिखूं? 0. 0 sir. जीरो लिखो. फोर्थ पॉइंट. Throughout the tax year 23-24, Luke Limited, what? Provided Sheldon with living accommodation. The company purchased the property on 1st January 2022, right? For 540,000 and its annual value of 14,000. ठीक है.
Sheldon pays Luke Limited 250 pounds a month towards the use of the property. Running costs totaling 850 for the tax year were paid by Luke Limited. ये रनिंग कॉस्ट क्या होंगे, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? टेल मी. Taxable? Paid by the employer, taxable. Correct. The property was furnished by Luke Limited at a cost of 20,000 when Sheldon first moved into the property on 1st January 23. अगर जो फर्नीचर उन्होंने दिया है शेल्डन को for use, what will this be considered as? Tell me. Asset given for use? Furniture given for use, correct or not? Tell me. Property. चलो आ जाओ फिर. Sir, but Submission it says that the property was furnished by Luke Limited, so where does it mention that they've provided asset? मैंने तुमको फ्लैट दिया एज एन एम्प्लॉयर, बराबर है, Yes. और आपको फर्नीचर बना के दिया उसने. So have I given you my asset that I own for use? Tell me. Yes, sir. Correct. Yeah, correct. अब मेरे को बोलो सबसे पहले, राइट, बेसिक चार्ज आएगा या नहीं आएगा? टेल मी. Yes, sir, it will arise. राइट. तो आई एम डूइंग लिविंग अकोमोडेशन, ठीक है. बेसिक चार्ज कितना है? टेल मी. हाउ मच विल बी द बेसिक चार्ज? टेल मी. बेसिक Greater चार्ज इज than इक्वल टू व्हाट? एनुअल annual वैल्यू value एंड व्हाट? टेल मी. Higher of Annual annual rent value, actual rent paid. So paid. actual rent So rate is not given. So we'll take higher of annual. annual Annual value और एक्चुअल रेंट पेड, बराबर है. तो हायर ऑफ एक्चुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू और एक्चुअल रेंट पेड. एनुअल वैल्यू कितना है? टेल मी. 14,000. 14,000. 14,000, बराबर है. बट इज दिस द फाइनल बेसिक चार्ज अमाउंट या इसको प्रोरेट करना पड़ेगा? टेल मी. Pro rate. Prorata. So how many months is the property used by whom? Sheldon in the tax year 23-24. For the entire year. For Throughout the the entire tax year. year, So entire year. because he was given on 1st January 2023, बराबर है. So for the entire year, this into what? 12 divided by 12, 14,000 into Right. 12 by 12. ये एक ब्रैकेट में आएगा. And will there be some deductions from here? Tell me. No. Yeah. नहीं ना. We have यूज करने के लिए उसने कुछ पैसा नहीं भरा. 250. No, no, it will be deducted, sir. 250. डिडक्टेड. लेकिन 250 पूरा 250 ही या कितना? 250 per month. So Month. how much? 250 into 12. correct. So how much will be basic charge? निकालो. 14,000 into 12 by 12 minus 250 into 12. $11,000. 11,000 will be basic charge, right? Then will there be any additional charge that will arise? Yes, sir. अब Property पहले cost what is will you more. ask when there is an additional charge? Tell me. Cost of the property. Original more cost of than property is cost how of much? property. Tell me. It's More greater than than 75,000. 75,000. More than 75,000. How much is the original cost of the property? Tell me. 540,000. 540,000, right? Then you will ask yourself second question. What is the second question that you will ask yourself? Tell me. The property acquired is lesser than 6 years. Property acquired less than 6 years or more than 6 years. बराबर है क्या? Tell me. Is it acquired less than 6 years or more than 6 years? Tell me. Less than Less 6 than years. 6 years. Less या more than? अरे Less. क्या पढ़ते हो? किधर more than 6 years दिख रहा है तेरे को? बता मेरे को. पढ़ता है क्या क्वेश्चन? ये देख. सर किसे बोल रहे हैं आप मुझे? तुझे ही बोल रहा हूँ. तू ही बोला more than 6 years. मैं लेस देन बोला सर. लेस देन 6 Less years than. है. So less than. चलो. तो in that case, COPA minus 75,000 into 2.25%. So what is COPA? Tell me. If it is less than Original 6 years. cost. Original cost. Cost 540,000 is the 540,000. original cost. बराबर है क्या? Tell me. And the increment. 540,000 is the original cost. Correct? Yes. तो चलो आ जाओ. Additional charge कैसे कैलकुलेट करो? 540,000.
540,000 माइनस minus कितना करूँ 75,000. 75,000 इंटू कितना करूँ टेल मी into 2.25 2.25%. 2.5% इंटू n/12 करते क्या इधर टेल मी yes Yes. तो कितने वर्ड पूरे महीने पूरे 12 महीने तो इंटू 12/12 करेक्ट 10462.5 5. 10462.5 करेक्ट yes चले आगे और ये 20,000 का क्या करना है एक मिनट नहीं पहले रनिंग कॉस्ट का क्या करें रनिंग कॉस्ट पूरा टैक्सेबल टेल मी हाउ मच इज द रनिंग कॉस्ट टेल मी 850. 850 pound fully taxable and asset given by employer to employee for use कितना होगा 20,000 का एसेट है उसका कितना परसेंट टैक्स होगा टेल मी 20%. एंड हाउ मेनी मंथ्स it has been used टेल मी Fully. for the whole year for the whole year 10 to 12 by Whole 12 करेक्ट तो कितना होगा 4,000 ये टैक्सेबल होगा चलो मेजर ये 2 या 3 मार्क इसको ही रहेंगे मेजर करेक्ट sir it will be 850 and 20,000 ना both पूरा For 20,000 टैक्स होता है मैं आपको कोई 20, एसेट यूज करने के लिए देता हूँ तो टेल मी 20% of that. no only 20 20% of that is taxable yeah so Luke Limited paid what 890 pounds for medical insurance for Sheldon if Sheldon has arranged the medical insurance himself it would have cost him 1060 अब मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया है करेक्ट कितने का बेनिफिट है 890 इज इट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट मेडिकल इंश्योरेंस का आपने पढ़ी एग्जाम की लिस्ट जो नॉट yeah इम्पोर्टेंट उसके अंदर ये है मेडिकल इंश्योरेंस sir 10,000 तक का था ना कुछ क्या लिमिट उसमें एग्जिम्ड का मेडिकल इंश्योरेंस हाँ जाओ जाओ मेडिकल इंश्योरेंस इन योर 5, नोट्स देखो जरा इधर 5. आते क्या आ जाओ जरा देखो यहाँ क्या है 500 per employee 500 पाउंड वो मेडिकल इंश्योरेंस है या मेडिकल एक्सपेंस है पढ़ो पढ़ो That is ट्रीटमेंट है मेडिकल expense. ट्रीटमेंट बराबर हाँ कर पढ़ते नहीं हो तो इंश्योरेंस तो होगा ही नहीं देखो आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो शांति से टेक अ डीप ब्रेथ पढ़ो फिर गो टू व्हाट मेडिकल मेडिकल नहीं मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल क्या है आ जाओ जरा एम्प्लॉयमेंट इनकम में एग्जाम बेनिफिट्स की लिस्ट इधर दी है क्या देखो जरा एग्जाम बेनिफिट प्रोफार्मा है ही नहीं इधर है क्या इधर एग्जाम बेनिफिट बेनिफिट्स एंड पे सिस्टम ठीक है एग्जाम बेनिफिट में आओ पूरा का पूरा मेडिकल इंश्योरेंस देखो किधर दिख रहा है क्या मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दिख रहा है इंश्योरेंस किधर दिख रहा है क्या नो No, नहीं sir. दिख रहा है तो अभी क्या करोगे एंटायरली Benefit टैक्सेबल taxable. एंटायरली टैक्सेबल मेडिकल इंश्योरेंस हाउ विल यू गो अहेड विद इट इंश्योरेंस देखो इधर मिलता है क्या देखो जरा एम्प्लॉय लायबिलिटी एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस ये दिया हुआ है क्या करोगे अब उन्होंने ना स्टडी अप पे ये दिया हुआ है बराबर है क्या कैसा करोगे यस हाउ डू यू थिंक देखो उन्होंने क्या बोला है 890 का मिला मेडिकल इंश्योरेंस फॉर शेल्डन राइट और वो अगर खुद लेता तो कितने का मिलता टेल मी 1060 तो 1060. लॉजिकली बेनिफिट कितने का होना चाहिए 890 Difference of या ये 1090 1060 माइनस 500 हाँ difference of that. अरे 500 कहाँ से आया राजू नहीं सर नहीं 500 क्या आएगा है एक मिनट तू तेरे दिमाग में 8, 9. एक बार वापस सोच 500 काय का है ट्रीटमेंट का है एक्सपेंसेस ये Expense. ट्रीटमेंट है या इंश्योरेंस है पहले ये तेरे दिमाग में डन कर ले
यस यस। ठीक है। अब मेडिकल इंश्योरेंस पे करने का कोई डिडक्शन है क्या तेरे को, पहले ये बता। तूने नो। मेडिकल इंश्योरेंस पे किया, उसका कोई डिडक्शन है नहीं, बराबर है। बट तूने खुद लिया होता तो 800 नहीं 1000 का पड़ता, बराबर है। हाँ, और गवर्नमेंट ने यानी तो सॉरी तेरे एम्प्लॉयर ने पे किया तो तेरे को कितने में पड़ा, 890. 890। 890। और तूने किया हो तो कितने में पड़ा होता, 1000। 1050। वॉट एवर। तो एम्प्लॉयर के पास से बेनिफिट कितना मिला, बिकॉज द एम्प्लॉयर पेड इट, टेल मी। 170. हाँ, तो एम्प्लॉयर बेनिफिट ड्यू टू एम्प्लॉयर बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, 10 कितना था रे बेटा, 10 170, sir. नहीं, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, टेल मी। 10 1090 minus 890. माइनस 890, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1090 माइनस 890, Sorry, 1060, sir. 1060, ओके। 170. गड़बड़ नहीं करने की, सोचने का, अरे सर मेडिकल इंश्योरेंस तो किधर भी नहीं है, उसका पेमेंट पे कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं है, बराबर है। अगर नहीं है तो अभी मैं क्या करूँ, तो कुछ दो अमाउंट दिए, तो सोचो कि मैं अगर करता तो 1060 पड़ता, बट अगर एम्प्लॉयर के थ्रू कर रहा हूँ तो 890 में पड़ रहा है। यानी टैक्सेबल क्या होना चाहिए, बेनिफिट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर पेमेंट मिल रहा है क्या। Sheldon incurred business expenditure of 600 pounds during the tax year 23, which was reimbursed by Luke Limited in full. अगर पूरा का पूरा reimburse हुआ है, राइट, और पूरा का पूरा पैसा मिला है, तो नेट इम्पैक्ट कितना जाएगा बुक्स में, 0। 0 का 0. जाएगा, बराबर। तो लिख दो एक्सपेंसेस इनकर्ड, या ऐसा लिखो बिजनेस एक्सपेंसेस, या ऐसे बेटर एक्सपेंसेस होली इनकर्ड, एक्सपेंसेस होली एक्सक्लूसिवली, ऐसे ही कुछ वर्डिंग था। एंड क्या था, टेल मी। ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, नेसेसरीली भी होता है, एंड नेसेसरीली फॉर बिजनेस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर यहाँ वर्डिंग चेंज हो जाता कि विच हैज बीन रिम्बर्स्ड बाय ल्यूक लिमिटेड इन फुल, सुनो, राइट, तो शायद ऐसा होता क्या, अगर ऐसा बोलते विच हैज बीन इंक्लूडेड, विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी, ऊपर जो इधर की ग्रॉस सैलरी है ना, ऊपर विच हैज बीन ऑलरेडी इंक्लूड इन द ग्रॉस सैलरी, रीइंबर्समेंट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूड इन दिस 133,000, तो आप 600 का क्या करते, टेल मी, Minus. माइनस करते, बराबर है क्या, क्योंकि 600 ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, बट माइनस नहीं हुआ, बराबर है। तो यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, टेल मी, 600 एक्सपेंसेस डन सर माइनस, ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझा नहीं। देख इधर मैंने क्या बोला तेरे को, 600 का तूने एक्सपेंस किया, मैंने तेरे को हाँ। 600 दिया, बराबर है। यस यानी 600 टैक्सेबल, 600 डिडक्टेबल, 0 का इम्पैक्ट आएगा, बराबर है क्या। यस यस। बट यही मैं बोलता कि ऑलरेडी 600 का रीइंबर्समेंट तुम्हारे 133 में इंक्लूडेड था, और मैं बोल रहा हूँ कि 600 का एक्सपेंस डन है, तो आप क्या करते, टेल मी। रीइंबर्समेंट टैक्स हो गया है, बट हाँ। एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं हुए, तो आप क्या करते, एक्सपेंसेस डिडक्ट करते, बराबर है क्या, ओके ओके। बराबर है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 0, करेक्ट। उसके बाद फॉर द टैक्स ईयर ल्यूक लिमिटेड डिडक्टेड इनकम टैक्स ऑफ 60,560 अंडर द PAY सिस्टम, ये यहाँ पे माइनस होगा, टैक्स डिडक्टेबल है इनकम में से, टेल में, या PAY में माइनस होगा वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स, टेल में, PAY at the end. PAY आ जाओ। शेल्डन owns 12 residential properties which are let out, ठीक है। टोटल रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 140,000 pounds. In addition, on 6th April, Sheldon received a premium of 45,000 on the grant of a 5-year lease for a freehold property. Sheldon's expenditure 35,800, 2,000 for decorating and painting one of the properties. चलो आ जाओ, प्रॉपर्टी इनकम का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये
इसका कर ले क्या, टेल मी, क्या बोलते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम का कर लेते हैं, ठीक है, लीज प्रीमियम, करेक्ट। तो लीज प्रीमियम रिसीव्ड कितना है, टेल मी, 45,000। 45,000, करेक्ट। और एक मिनट, अगर अपना सैलरी का हो गया है तो सैलरी की इनकम बाहर ले लेता हूँ। 160,622.5 आ रही है, देखो आपकी भी उतनी आ रही है क्या, रेवेन्यू कंपोनेंट। हाउ विल यू कैलकुलेट रेवेन्यू कंपोनेंट ऑफ लीज, टेल मी, रेवेन्यू कंपोनेंट ऑफ लीज 45,000 into 2%. into 2% into how much, tell me, N-1. 4, n-1, how many years is the lease for, 5 years. 5-year 5 lease, years. 4. into 4, that is there, 3,600. कितना आता है, tell me, 3,600. 3,600, so this 600. minus this 41,400 will go outside, correct, 41,400। 400. उसके बाद अभी नॉर्मल रेंट इनकम इज 140,000, करेक्ट। अलाउेबल एक्सपेंस में चलो, ये मेरे को बोलो, ये अलाउेबल एक्सपेंस में चलो, आ जाओ, अलाउेबल एक्सपेंस, चलो ये, Sir, the lease premium will be 41,400, ना? हाँ, अलाउेबल एक्सपेंस में सबसे पहले एक अलाउेबल एक्सपेंस कौन सा है, 35,800 अलाउेबल है, वो तो माइनस कर ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, 2,000 ऑफ रीडेकोरेटिंग एंड पेंटिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, अलाउेबल और नॉट अलाउेबल, टेल मी, 2,000 फॉर पेंटिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, redecoration is an allowable expense or not an allowable expense, tell me, Not allowable. Not another. redecoration not allowed, Yes. Painting or not. painting and redecoration not allowed, सर तो ये तो redecoration कैपिटल हुआ capital, ना, हाँ, इसका नेचर तो कैपिटल हुआ ना, एक्सपेंडिचर। मतलब तू A घर को painting पेंट करता है, allowable. से So करोड़ रुपया painting. ऊपर वैल्यू चला जाता है, ऐसा है, क्या बोलते हो यार, उधर अपन पेंटिंग रीडेकोरेटिंग किया है, उधर अलाउेबल एक्सपेंस बोल के, क्या करूं, अलाउेबल है, पेंटिंग एंड Allowable. रीडेकोरेटिंग लिख के दिया है मैंने, पढ़ते नहीं हो मतलब, आप कम से कम 50 बार मेरे नोट्स पढ़ो, तो कुछ भी आए उसमें से तो मिस नहीं होना चाहिए। 4,000 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू वॉशिंग मशीन, राइट, of 5 new washing machine, all 5 washing machine replaced washing machines which had been bought for 600 pound in 2016, the new washing machine was similar to one replaced। अब मेरे को बोलो 4,000 लेना या 4,000 माइनस 600 लेना, 4,000. देखो सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिलेटेड टू, Replacement. रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक आइटम रिलीफ, बराबर है, RDI। Yeah. RDIR, RDIR याद करो, क्या आप सेम टाइप ऑफ डोमेस्टिक आइटम ले रहे हो क्या, पहले वो डिसाइड करो, Yes. सिमिलर वॉशिंग मशीन है या Similar न्यू वाला. टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन है, टेल मी, New Similar. type of machine। अच्छा. सिमिलर या न्यू, New washing machine. मॉडर्न इक्विवेलेंट ले रहे हो या सिमिलर वॉशिंग मशीन ले रहे हो, Similar, sir. Similar to concept. Similar to. न्यू मॉडर्न इक्विवेलेंट ले रहे हैं सर। बराबर है, मॉडर्न इक्विवेलेंट ले रहे हैं, यस। देखो एक होता है मॉडर्न, आप आगे का ले रहे हो, करेक्ट, हाँ। या एक सिमिलर ले रहे हो, यानी वॉशिंग मशीन में आप सेमी ऑटोमेटिक ले रहे हो या आप अभी ऑटोमेटिक ले रहे हो, पहले ये बताओ,
Automatic. अरे पढ़ो ना क्वेश्चन. 4,000 for cost of 5 new washing machines. All 5 washing machines were replaced washing machines which had been bought for £600 each in 2016. The new washing machines were similar to the ones replaced. मतलब क्या? सेमी ऑटोमेटिक का सेमी ऑटोमेटिक ले रहे हो या सेमी ऑटोमेटिक का ऑटोमेटिक ले रहे हो? ऑटोमेटिक ले रहे हैं, सेम टाइप का ले रहे हैं, क्या but नींद new. नहीं हुई, चाय नहीं पी, या क्या प्रॉब्लम है, या सीपीयू में गड़बड़ है? टेल मी. सिमिलर है क्या या मॉडर्न ले रहे हो आप कुछ? टेल मी. Similar, similar. सिमिलर. ठीक है. तो Yeah. 4,000 अलाउेबल एक्सपेंस होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ. मैं कुछ नहीं हेल्प करने वाला, मेरे को मालूम ही नहीं मैं कहाँ पढ़ता हूँ. निशान, व्हाट डू यू डू? 4,000 Four, will be allowable expense or not? Tell me that. not allowable. Not allowable. Why? Replacement It, domestic item relief is not available. not available. That's a new washing machine, right? Is it a new washing machine? Arey Raju, Ah, you sorry. replace the Yeah. old washing machine, Fo- correct? If you buy the similar washing machine, will it be an allowable expense or not be an allowable expense? It will Go be to an your notes. allowable. Go to your notes. Is RDIR an allowable expense? जाओ. The 4,000 will be allowable because अब this is 4,000 अगर 4,000 allowable है तो what about this 600? You should deduct that 600. Deduct that. Those, that is purchase Scrap. expense. What is allowable as a deduction from your what? Tell me. 4,000 जाओ. market value of equipment of all type of domestic item. हाँ? Market value of equipment of all type of domestic item. डूब के मर जाओ रे. ऐसा तो एक ये चिल्लू वाला भर पानी लो. है। ऐसा एक चिल्लू भर पानी लो और उसमें डूबो और मर जाओ. सर यही तो allowable है। Replacement. So cost is 4,000. Cost will be allowable expense. From that cost, what is deductible? Scrap. Scrap Scrap value. तो ये 600 scrap value है या ओरिजिनल परचेस प्राइस है? original purchase. तो will that be 4,000 में से डिडक्ट होगा या नहीं होगा? No. नहीं No. होगा. अब समझ में आया क्या? Yeah, got it. आपके पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थे जो आपने 600 इंटू 5 में खरीदे थे, बराबर है, Yes. राइट? अब इस परचेस वैल्यू की कोई रिलेवेंस है क्या? एनीवेयर इन द RDIR डू यू सी परचेस वैल्यू बीइंग यूज्ड, ओल्ड परचेस वैल्यू ऑफ द मशीन? इनिशियल कॉस्ट ऑफ buying the machine, is it allowable या डोमेस्टिक आइटम? अलाउेबल एक्सपेंस और नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंस? Not allowable. Not Not an allowable. allowable expense. अभी आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बराबर है. 5 machines for 4,000, वो तो अलाउेबल आएगा बिकॉज इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन. पहले ये 4,000, बराबर है क्या? टेल मी यस और नो. Yes, sir. Now from that 4,000, correct, one thing that will reduce your expense, that is nothing but the scrap value of old washing machine. आपको scrap value of old washing machine दिया है क्या? No. 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 So how much will be deductible as RDIR? 4,000. 4,000 या 6,000 into 5? 3,000. Tell me. कितना है? 4,000, sir. 4,000. तो लिख रहा हूँ replacement of domestic items relief, right? Similar washing machine bought, बराबर है.
तो 4000 माइनस, हाँ अब ये लीगल फीस इन रिलेशन टू द ग्रांट ऑफ 5 ईयर लीज फॉर फ्री होल्ड शॉप, ये मिलेगा क्या लीगल फीस एज अ लीज के अगेंस्ट डिडक्टेबल होता है क्या कोई एक्सपेंस? याद नो, करो, नहीं होता। इवन आप जब इसमें जाते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, विल दिस 1600 बी अवेलेबल टू यू? टेल मी। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लीजिंग नॉट अलाउड, तो मैं लीज में डाल देता हूँ इनिशियल कॉस्ट ऑफ लीजिंग नॉट एन अलाउबल एक्सपेंस। बट अगर यही होता रिन्यूअल ऑफ लीज, तो वुड इट बी एन अलाउबल एक्सपेंस? टेल मी। रिन्यूअल ऑफ लीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है ये। When we come to self-employment, at that time we will again go through it. renewal of lease is allowable, sir. तो आपका रेंटल इनकम का नेट आना चाहिए 98,200। नाउ आई कैन शो यू द आंसर। अदर इनकम कुछ पता है क्या? डिविडेंड इनकम बोला है 17,000 की, ठीक है, डिविडेंड इनकम ऐड कर देता हूँ। टैक्सेशन करते वक्त ध्यान रखना, डिविडेंड इनकम करेक्ट 17,000। तो हाउ मच इज द टोटल इनकम? एक बार चेक करो फर्स्ट, नाउ आई विल शो यू द आंसर। आ जाओ। Sir, 2 minutes. Wait, 2 minutes. हाँ हाँ, 17,000. Sir, so I just did not get. I got confused with this point only. कि this redecorating and painting of one of the properties. This wala point. So, sir, हाँ it is not a capital expenditure, right? हाँ, मैंने दिया ना, रीडेकोरेटिंग पेंटिंग इज एन अलाउबल एक्सपेंस बोल के। देखो जाओ, स्टार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, जाओ जाओ। हाँ. नहीं दिया होगा, ऐसा होगा ही नहीं। वो यहाँ पे सर आपके इस नोट्स में, वो ओल्ड नोट्स में मैंने लिखा नहीं है, इसके लिए मुझे ऐसा वो कैसे कंफ्यूज होगा? हो. मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसमें बोला है मैंने, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले तो मेरा नोट्स का सॉफ्टवेयर ही गायब हो गया है। कल मेरा, लिख सर, तो लो। आपने वो पॉइंट का खाली लॉजिक क्या बताया था कि उससे प्रॉपर्टी प्राइसेस अप्रेज नहीं होती इसके लिए? नहीं, ये और दिया हुआ है रीडेकोरेटिंग एंड पेंटिंग। आई एम सरप्राइज, क्या है लिखा नहीं आपने? लिख लो, इधर लिखना उधर लिख लो। लिख लो, रीडेकोरेटिंग एंड पेंटिंग अलाउएबल एक्सपेंस। सर, इसका वो करते हैं, क्या? इनकम कंप्यूटेशन, टैक्स कंप्यूटेशन. हाँ करो टैक्स कंप्यूटेशन, चलो। तो सर, आप आंसर बता रहे हैं, हम करें फिर उसके बाद बताएंगे? करो ना, मैं आपको टोटल इनकम बता देता हूँ, फिर आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करो। हाँ, टोटल इनकम सर कितना हुआ? टोटल इनकम कितना है, रुको देखने दो। 3172,222.5 बराबर है।
ए ये देख ए नोट्स पढ़ते नहीं ना आप लोग? सर 98 क्वेश्चन देखो और क्या है नोट्स में, क्या लिखा है रे? देख जरा, पढ़ जरा, मेरे को नहीं दिख रहा है। सर मैं पुराने नोट्स की बात कर रहा हूँ। अरे तो ये नोट्स अभी ये क्लास लगा है क्या नहीं राजू? हाँ तो ये नोट्स पढ़ने चाहिए क्या नहीं? ओके ओके सर। वो बराबर है एक क्या आध नहीं? पॉइंट स्लिप हो गया आगे दिमाग से। क्वेश्चन में भी मैंने दिया है, जो तेरे इसमें भी लिखा के दिया है क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, हाँ बट अपन पढ़ते क्या? पढ़ते हैं सर, कभी कभार मिस हो जाता है। नहीं करने का ऐसा, एक पॉइंट मिस हो गया 50 से 49, है करेक्ट है कि नहीं? सर। यस सर। देखो अभी आ जाओ जल्दी, चलो एक एक अमाउंट चेक कर लो। आ जाओ जल्दी। 133, 1140, बेसिक चार्ज 11,000, 10462, रनिंग कॉस्ट 850 टैक्सेबल, 4,000 एसेट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, राइट? फिर एम्प्लॉयर बेनिफिट टू reduce क्या मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस wholly exclusively allowed for business, फिर 41,400 लीज, 98,200 प्रॉपर्टी इनकम, 17,000 डिविडेंड इनकम, टोटल इनकम 317,222.5। अगर आपने डिविडेंड इनकम को इंक्लूड नहीं किया है तो कर लो, 317,222.5 आ रहा है क्या? सर एक मिनट क्वेश्चन बताना, ये रेंटल इनकम में 140 मिस हो गया मेरा कहीं। 140? अरे टैक्सेशन ही मिस हो गया, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं सर क्वेश्चन बताइए ना एक मिनट। ये रहा क्वेश्चन, इसके बगैर काम होगा क्या? इनकम ही आप भूल गए। total income. निशान, व्हाट हैपेंड? हाँ सर बट ओ रेंट का थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर लीगल आई टेकन लीगल फी सर आंसर बताना क्या है, 33 लाख, क्या है आंसर? 317,222.5। सर लीगल फी इट्स नॉट एन अलाउबल राइट नॉट अलाउड, डिस्कस तो किया। लीगल फीस अलाउबल एक्सपेंस, ग्रांट ऑफ 5 year लीज फॉर द फ्री होल्ड शॉप, जो तुमने ऊपर शॉप दिया है। सर मेरा ये आ रहा है 317,622.5। आपका 222.5 आ रहा है ना सर आंसर? 400 रुपये तूने किधर ज्यादा टैक्स किया है, या 400 रुपये डिडक्ट नहीं किया? आई थिंक पेंटिंग ये रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम 4,000, 2,000 पेंटिंग रिडेकोरेटिंग, देख लो 400 किधर ज्यादा टैक्स किया तूने? देखो, सबसे पहले 133,000 सैलरी रिसीव्ड, 1140 इंटरेस्ट ऑन बेनिफिशियल लोन, जिम हाँ हाँ। बेनिफिट जीरो, यस। 11,000 का बेसिक चार्ज, 10,462, एक मिनट सर, एक मिनट रुको, बेसिक चार्ज 11,000, हाँ। 10,462 इज एडिशनल चार्ज, यस यस। उसके बाद 850 रनिंग कॉस्ट, 850 रनिंग कॉस्ट, यस। फिर एसेट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर यूज 4,000, यस देन एम्प्लॉयर बेनिफिट रिड्यूस्ड मेडिकल इंश्योरेंस 170 पाउंड्स, यस यस। फिर देखो प्रॉपर्टी इनकम का लीज वाले का 41,400, 41,400, हाँ हाँ बराबर। बराबर है ना? ये यस कितना यस। अलग है, एक मिनट,
35,000 ये सारा मिला के 98,200 रेंटल इनकम, और ये देख लो। हंड्रेड। सारों का टोटल 17,000 डिविडेंड इनकम। सर पूरा प्रॉपर्टी इनकम का टोटल 98,200 आ रहा है। 98,200 और 41,400 दोनों मिला के 139,600। 139,600 ना, हाँ वो भी बराबर है, तो सर फिर मिस्टेक कहाँ हो गई? मुझे क्या मालूम, आप देखो। 160,622 आया क्या सैलरी, सैलरी इनकम? हाँ हाँ, 166 तो ये 41,000 लिया होगा आपने, या 41,800 लिया होगा। ये भी सर लीज प्रीमियम का भी 41,400 है, बराबर है। 98,200 इधर 4,400 कर दिया होगा गलती से, रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम रिलीफ। सर ये जो है ना वो रनिंग कॉस्ट वाला, और वो 4,000 जो एसेट गिवन था, वो तो उसका इनकम इंक्रीज करेगा ना। कौन सा? वो जो फर्नीचर फर्निश किया था ना 20,000 का, 850 रनिंग कॉस्ट प्रोवाइड किया था, नीचे नीचे उसमें, इसमें? ये बेसिक चार्ज में, बेसिक एडिशनल चार्ज वाले में, हाँ। तो वो तो उसका इंक्रीज करेगा ना सर इनकम। हाँ तो इनकम इंक्रीज ही किया है, टैक्स ही किया है मैंने 850, हाँ हाँ। और ये 4,000। मैंने उसको दोनों को कंबाइंड 4,850 किया था ठीक उसको। है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशान हो रहा है मैच? इज इट मैचिंग? हो गया। हाँ सर, 370। ठीक है, एक काम करो, मैं ये एक्सेल शीट आपको भेज देता हूँ, एक बार आप अपना आंसर चेक कर लो। राइट, अब तो क्या इस पर डायरेक्ट टैक्स ही कैलकुलेट करना है, करेक्ट? ये तो राइट, टोटल इनकम ही नेट इनकम होगी, करेक्ट? पीए माइनस होगा क्या कुछ? नथिंग। नो भी है। टैक्सेबल इनकम। सर ये जो सारे पॉइंट्स है ना, अलाउेबल एक्सपेंसेस, नॉन अलाउेबल सारे, फिर ये आरडीआईआर, वो इंडिविजुअली सर उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर तो बराबर समझ में आता है, पर ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें सारे के एक जिसमें टच वैसे भी मैंने हो क्वेश्चन लिए, आपने देखा नहीं? नहीं सर, तो मैं बताऊं उसमें फिर से एक आध एक स्लिप हो जाता है पॉइंट, या फिर रिकलेक्ट वो नहीं ज्यादा, होता। जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले एनएसआई कितना है आपका, देखो जरा। दिस -17,000 आपका एनएसआई, और डीआई कितना है? 17। तो टैक्सेबिलिटी शुरू करते हैं, टैक्स, करेक्ट? अब देखो एनएसआई was 37,700। तो ये तो होमवर्क दे दो ना टैक्स लाइबिलिटी का तो। ठीक है, कर दो आप। ठीक है, हाँ ये एक्सेल शीट आपको भेज देता हूँ। और दो क्वेश्चन, अब कुछ स्टडी हब से क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। स्टडी हब का एक्सेस आपके पास है ना? हाँ है। हाँ सर। आ जाओ, स्टडी हब में से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। तो उसका वो पेशेंस का भी भेजना ना सॉल्यूशन। भेजता हूँ ना। हाँ, ये सोफिया वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये अगर आप सॉल्व कर पाए तो नथिंग लाइक इट। सोफिया इज सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर फोरकास्ट टैक्स एडजस्टेड टीएटीपी ऑफ 80,000, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। सर नहीं, ये स्टडी क्या? हब में कहाँ पे है ये, इसको कहाँ पे ढूंढना? नहीं, रुको रुको रुको, मैं नाम लिख के दूंगा, ये क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन में स्टडी अप में। बेसिक एंड योको, हाँ इनकम टैक्स ये रहा।
कुछ अच्छा क्वेश्चन सूझ रहा है क्या? ब्लैक लिमिटेड, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ऊपर वाला कौन सा है? मल्टीपल टॉपिक्स, Duncan, Sophie, Fergus, Constance I think नहीं, डायरेक्टर, remuneration already paid, gross salary planning to pay super bonus of 35,000। रुको, फिर दूसरी जगह से आपको देने दो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वो वर्ड फाइल में आपको क्वेश्चन पेस्ट करके भेजता हूँ, होमवर्क वाला। ओके सर। ओके सर। चलेगा? यस चलो सर। देन वी कैन रैप इट अप फॉर टुडे, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आज शुरू नहीं करना है। तो देखो, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे में मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल अलाउंस, राइट, और रिमेनिंग चैप्टर्स सारे रिवाइज करूंगा 6 घंटे में, करेक्ट। ओके और फिर अगले सैटरडे संडे, राइट, ऑल क्वेश्चंस ऑन दैट। उसके बाद पहले आईएसटी वैट, उसके क्वेश्चंस, एंड देन वी गो टू व्हाट कॉर्पोरेट और उनके क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो देन we'll wrap it up for today. We'll meet tomorrow 7 a.m. Till then, bye bye. ओके, यस सर। थैंक यू सर। अपलोड द एक्सेल शीट एंड नोट्स एवरीथिंग। Yes, yes, yes. Okay, buddy. Bye. थैंक यू थैंक सर। यू सर, हैव अ Welcome, नाइस beta. डे। Bye.